दोस्तों वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम। आज का कर दिया आपने इंग्लिश का पेपर और आपकी स्माइल बता रही है कि बहुत अच्छा किया है। शाबाश मेरे हीरोज। और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन भेज रहे हैं। थोड़ा सा आप टैली करके बताइए कि कितने कितने। वैसे तो आपके 10 ही आ रहे होंगे, फिर भी एक बार टैली करके बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो है पैराग्राफ, आपने पहले पढ़ लिया होगा पूरा। और क्योंकि आजकल बहुत खासकर इस बार इजी बना दिया है, तो मुझे लगता है ढूंढने में कोई परेशानी हुई नहीं होगी आंसर्स। पहला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑफर मल्टीपल बेनिफिट्स in India. Support the above statement in 40 words with evidence from the text. You have a lot of evidence to support this, and it is here. The first benefit is environmental impact, the greatest benefit. And apart from the environmental impact, lower running cost. See, the initial cost of the vehicle is high. You should not write initial cost, that is very high despite the subsidies. But the running cost is low. That is the second benefit, right? अरे भाई, आप बैटरी एक बार चार्ज करके दिल्ली तक चले जाइए बिना चिंता के, कोई चिंता नहीं है आपको, इतनी अच्छी हैं ईवीज। और तीसरा बेनिफिट, मेंटेनेंस कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई है, राइट? क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स कम है। भाई मूविंग पार्ट्स ज़्यादा होंगे तो घिसेंगे ना। मैं तो खुद इंजन फिटर रहा। और नॉइज़ पोल्यूशन कम होता है। तो देखिए कितने बेनिफिट्स हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट सबसे बड़ा बेनिफिट, लो रनिंग कॉस्ट दूसरा बेनिफिट, मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है क्योंकि मूविंग पार्ट्स कम हैं तो घिसते कम हैं, और चौथा बेनिफिट है नॉइज पोल्यूशन नहीं होता, तो जहाँ से गुजरते हैं वो बेचारे शांति से अपना काम करते रहते हैं। तो इसमें तो आपके 2 मार्क्स पक्के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द असर्शन एंड रीजन गिवन बिलो। असर्शन है ईवीज आर गेनिंग ट्रैक्शन इन इंडिया। रीजन है द इंडियन गवर्नमेंट इज कमिटेड टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। बातें तो दोनों सही लग रही हैं। इट इज ट्रू दैट ईवीज आर गेनिंग ट्रैक्शन इन इंडिया। और ये भी बात सही है कि the Indian government is committed to reducing carbon emission, and this is the reason इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे सब्सिडीज देती है इनिशियल कॉस्ट के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ assertion is also true, reason is also true, and this reason is the correct explanation। इसीलिए आप देखिए ऑप्शंस, both assertion and reason are true, and the reason is the correct explanation of assertion. That means A is absolutely correct. Question number 3. Justify the following statement. Despite government support, the initial cost of EVs remains a challenge for the customer. You have to justify this statement. So somewhere near about you have to write, yes, this is true that the Indian government provides a lot of subsidies, yet the initial cost is not within the reach of every customer, and this is the reason that
although it is gaining popularity slowly and steadily, but it has not gained so much popularity as of today, right? तो एक नंबर अगर आप इतना सा सपोर्ट कर देते हैं आंसर को तो दिस विल बी करेक्ट. Complete the following with one suitable region from the text. The silent operation of EVs contributes to the better urban living because, see, the silent operation of EVs, it contributes to better urban living. Urban living is being disturbed by two things. One is carbon emission, the second one is नॉइज़ पोल्यूशन. और टेक्स्ट में जैसा कि आपने पढ़ लिया है, इन दोनों चीज़ों से ही शहर के लोगों को राहत मिलती है. तो यू कैन राइट बिकॉज इट रिड्यूसेस कार्बन एमिशन एज वेल एज नॉइज़ पोल्यूशन. इट रिड्यूसेस कार्बन एमिशन, राइट, एज वेल एज नॉइज़ पोल्यूशन. In 2023, India recorded sales of over 1.5 million EVs, a significant jump from the previous year. State any one inference that can be drawn from the above statement. The inference that can be drawn from the above statement is that EVs are gaining popularity slowly and steadily. This is the inference that can be drawn from this, right? According to the passage, what is range anxiety in the context of the electric vehicle? By range anxiety is the worry for the battery limit. ठीक है, worry for the बैटरी लिमिट. अब चलाने वाले को ही चिंता तो रहती ही है ना कि भाई ऐसा ना हो ये 200 किलोमीटर पे जाके गड़बड़ हो जाए. सो दैट इज व्हाट द मेजर कंसर्न इज, और दैट इज व्हाट रेंज एंजाइटी रेफर्स टू. Based on the given text, which type of EV dominated sales in India in 2023? क्लियरली गिवन है पैसेज में टू व्हीलर्स. टू व्हीलर्स डोमिनेटेड सेल्स इन इंडिया इन 2023. ठीक है, इट वुड बाई थ्री व्हीलर्स. नेक्स्ट इज कंप्लीट द सेंटेंस suitably. To address the challenge of charging infrastructure, various initiatives are being undertaken, such as, see, various initiatives are being taken, such as improved battery technology for longer ranges. That is one initiative, right? And battery swapping technology, this is another initiative. Even if अगर आप ये दो इनिशिएटिव भी लिख देते हैं तो काफ़ी हैं, यू विल गेट 1 नंबर ऑफ मार्क्स. ठीक है, एक तो इम्प्रूव्ड बैटरी टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव हो गया लॉन्गर रेंज के लिए, और दूसरा इनिशिएटिव हो गया बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी का. राइट दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. गिव वन रीजन टू सपोर्ट वाई एडॉप्शन ऑफ ईवीज इज स्लो इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. देखिए इसके लिए ना एक बात तो साफ है कि आपको ये जानना होगा जहाँ जहाँ पर ईवी का जो सेल्स है वो बढ़ी हैं, वो कहाँ पर बढ़ी हैं? महाराष्ट्र में, दिल्ली में, कर्नाटक में. क्यों बढ़ी हैं? बिकॉज वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्टिव थी. तो अब ये जानना चाह रहा है कि वो एरियाज जहाँ पर उतना अभी ईवी का सपोर्ट, ईवी का सेल नहीं बढ़ा, तो सिंपल कारण है वहाँ स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं
वो सपोर्टिव नहीं है। तो आपको लिखना पड़ेगा वन रीजन फॉर slow rate of adoption in some of the states is that the state government policies of those states are not conducive. This is the one solid reason. ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज कंडीसिव होंगी तो फिर ईवी का सेल और ज़्यादा बढ़ेगा, जैसा कि एविडेंट है महाराष्ट्र से, दिल्ली से, कर्नाटक से। मुझे उम्मीद है कि आपने ये आंसर्स भी मोर और लेस, अच्छा थोड़ा सा इधर या उधर अगर वर्ड्स हो जाते हैं, खासकर एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। सेंट्रल आइडिया वही निकल करके आना चाहिए। आई एम श्योर यू हैव डन वंडरफुल्ली वेल। तो क्वेश्चन 2 के टैली करने के बाद आप बताइए आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों।